सुन सुन हुवै परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ। सतगुर का दर्शन पाए जियो, पूरा थाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वड्याई, मत को धरो गुमाना। सतगुर की जिसनू मत आवे, सो सतगुर महे समाना। ए बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। ए बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। सैभं गुर प्रसाद। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिरद हमारे। राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूरना पुरख विधाता, प्रभ जी तू मेरो सुख दाता। बंधन काट करे मन निर्मल, पूरना पुरख विधाता। रहाओ नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी। आनंद करें तेरे दासा, जप पूरन होई आसा। नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न बिरथी जासी। आनंद करें तेरे दासा, जप पूरना होई आसा। परम सन्मान योग धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज दा ये गुरमत समागम जिस विच आपां सारे अपनी रजेवियां भरी जिंदगी विचों समा कढ के हाजरी भर रहे हाँ। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं गुरता गद्दी नूं समर्पित रखे हुए इस गुरमत समागम दे विच बड़े प्यार दे नाल मेरे तो पहला बहुत सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे जथे पासों आपां सारियां ने सतगुर दी पावन बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ शब्द दी साडी जिंदगी विच बड़ी महानता है। शब्द ही है जिहड़ा मनुख दी जिंदगी नूं अगवाई दिंदा है। शब्द शब्द विच फर्क हुंदा है।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਬਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਸਕਲ ਨਿਧ ਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਖੇ ਹੰਸ ਮਰ ਜੀਵਾ ਨਿਹਚੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਆਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਤੇ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਆਓ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 626 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰੋਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੋਕਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਪਦੇਸ਼, ਗਾਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸੁਖ ਦਾਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੂੰ
मेरो सुख दाता प्रभ जी, तू मेरो सुख दाता, तू मेरो बंधन काट करे मन निर्मल, बंधन काट करे मन निर्मल। वाह वाह। बंधन काट करे मन निर्मल, बंधन काट करे मन निर्मल। पूरन पुरख विधाता, पूरन पुरख विधाता, तू मेरो सुख दाता प्रभु जी, तू मेरो सुख दाता। तू मेरो सुख दाता प्रभु जी, तू मेरो सुख दाता। गुर का शब्द रखवारे, गुर का शब्द रखवारे। चौकी चौगिर्द हमारे, चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लागा, राम नाम मन लागा। वाह वाह। जम लजाए कर भागा, जम लजाए कर भागा। तू मेरो सुख दाता प्रभु जी, तू मेरो सुख दाता। नानक प्रभ अविनाशी, नानक प्रभ अविनाशी। ताकि सेव न बिरथी जासी, ताकि सेव न बिरथी जासी। ताकि सेव न बिरथी जासी, ताकि सेव न बिरथी जासी। आनंद करें तेरे दासा, आनंद करें तेरे दासा। जप पूर्ण होई आशा, जप पूर्ण होई आशा। तू मेरो सुख दाता प्रभु जी, तू मेरो सुख दाता। बंधन काट करे मन निर्मल, बंधन काट करे मन निर्मल। पूरन पुरख विधाता, पूरन पुरख विधाता। पूरन पुरख विधाता, पूरन पुरख विधाता। गुरु पंचम पातशाह महाराज तिन्हां दी रसना तो उच्चारण कीते हुए शब्द नूं आपां सारिआं ने रल के गायन कीता। पातशाह जी शब्द दे रहाव वाले बंद विच फरमाउंदे ने, प्रभ जी, हे प्रभु जी, तू मेरो सुख दाता। सुखां दे दाते तुसी हो मेरे, यानी कि सुख तुहाडे तो बिना मैनूं किते होर नहीं प्राप्त हो सकता। ते दुनिया का हर इंसान
चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई खेतीबाड़ी करता है, चाहे कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई बंदा अपने घरों अपना परिवार छड्ड के बच्चे छड्ड के दूर जाके काम करता है, तो हर एक नूं पुछ के वेखो भी तेरी ये सारी मेहनत पिछे तेरी इच्छा की है। इदा किसी को बिठा के पुछो भी तू सवेरे आन के 8-9 बजे शॉप पर बह जाना है, शाम नूं जाना है, तू अपना परिवार छड्ड के दूर बार्डरां ते जॉब करदा है, विदेश गया है, तू निका जा बच्चा सी जदों गया सी, अज बच्चा विआहण योग हो गया, जां विआहया भी गया, तेरा टारगेट की है, तू काहदे लई करदा है? ते हर बंदे का इक्को ही जवाब होएगा, मैं चाहुंदा जिहड़े सुख मेरे माँ बाप वालों मैनू नहीं दिते गए, जो सहूलतां मेरा माँ बाप मैनू नहीं दे सकिया, मैं वो अपने बोलो जी पुछ के वेख लो, किसी नूं हर बंदे का जवाब ये होएगा। हुण ये कहो जी बंदा घरों बाहर रहिंदा है, वो कहे जी मैं सुख वास्ते नहीं कर रहा, जवाब ये होएगा। सवेर तो लैके मैं शाम तक दुकान ते बैठदा हाँ, कोई गली विच सब्जी वेचदा है, कोई फ्रूट वेचदा है, कोई रेहड़ी ला के बैठा है, कोई मंडी जाता है, कोई ट्रांसपोर्टर है, सारे। अच्छा एक गल होर सुनियो, ध्यान नाल तवज्जो दे के सुनियो कि तां गल समझ पै जाए। जिन्ने भी इंसान यतन करदा सुख लई करदा, कोई टारगेट मेरे से काम करदा भी मैं काम कर रहा, पर कोई पूछे जी तू ये काम क्यों कर रहा, तो कहे जी मैं इस करके करदा, मैं चाहना मैनू दुख मिले दे विचों। कोई इंसान तुहानू अपनी जिंदगी च ऐसा मिले जिहड़ा कहे मैं काम तां कर रहा, मैं चाहना इहदे विचों मैनू दुख मिले? कोई इंसान इदां दा नहीं मिलेगा तुहानू कि मैं काम तां कर रहा, मैं चाहना इह चों मैनू दुख मिले। वो काम तां कर रहा भी इहदे विचों मैनू बोलो जी, जे सारे यतन ही सुख लई हो रहे हैं, दुख आउंदे कित्थों ने फिर? क्योंकि यतन बहुत, सारे बोलो जी बाणी पढ़ने वाले वीर बेटे जी, यतन बहुत सुख के किए दुख को, दुख लई ते यतन ही कोई नहीं कीता। अच्छा जिस काम लई यतन नहीं कीता वो काम ज्यादा हो रहा, जिहदे लई यतन कीते हो ही नहीं रहा। कभी इस सवाल का जवाब लभण की कोशिश की है भी यतन तो सुख लई कीते जा रहे हैं, गिनती मेरी जिंदगी च दुखों की वध है। इसका मतलब यह है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸੁਖ ਲਈ कर रहे हैं ना, सानू अजे तक ये नहीं पता भी किहड़े काम चों सुख मिलना है ते किहड़े काम चों सुख नहीं मिलना। इत्थे भुलेखा लग गया। बंदा धन काहदे लई कमाउंदा है जी? 4 पैसे होण, इदां किसी बंदे नूं ये लगदा भी मेरे कोल पैसा नहीं, मैं तां दुखी हाँ, जिहड़ा मेरा खिजणा पाना, मैं खिजिया रहना 24 घंटे, कढ़िया रहना वा, आ डिप्रैशन है जिहड़ी मैनूं, आ तंगी है ना पैसे करके है। तो फिर जिन्हां कोल पैसा बहुत है उन्हां कोल ते हासा चाहिए। नौकरी है नहीं ना तां मैं दुखी हाँ, आम इहो लगता ना जी, क्यों साध संगत जी? मेरे को नौकरी है नहीं मैं तां दुखी हाँ। तो जेड़े बंदियां ने अगे नौकर रखे हुए ने, जिन्हां दे थल्ले 1000-500 बंदा काम करता है, जेड़े किसी दे बॉस ने, वो तो फिर सुखी होने चाहिए फिर, क्योंकि तू नौकरी लभ रहा, वो नौकरी दे रहा है, पर तुहानू वो भी दुखी मिलना है। तू दुखी क्यों है भरा? कहता इस करके रब ने कारोबार बड़ा दिता, किते एक दा जी दे छड़दा, पुत्र नहीं सी देना, धी दे छड़दा, कोई ना कोई घर च जी चाहिदा सी। इहदा मतलब ये लगता मेरे घर च सब कुछ हैगा, मेरे दुखों का कारण यह है मेरे घर औलाद है नहीं। फिर औलाद वाले तो ज्यादा सुखी चाहिए सी, पर तुहानू समाज विच औलाद वाले भी दुखी मिलणगे। कईयां दे घरां विच तुहानू बजुर्ग इस गल्लों दुखी मिलणगे, वड्डे ने भी परेशान किया, छोटे ने भी परेशान किया, मैनू साडा जवाई बड़ा सानू परेशान कर रहा, सानू फलाने ने बड़ा तंग किया, सानू तो फलाने ने बड़ा आवाजार किया।
एक गल का ख्याल रखना, सुख दो किस्म के होंगे, एक तन का सुख, एक मन का सुख। आ गर्मी लगती है, तुसी बाहर पखा छड्डिया, एयर कंडीशन ला लोगे, कूलर ला लोगे, ये तुहाडे तन का पसीना सुका देंगे, बस इस तो वध कुछ नहीं कर सकते। पर जे मन तपिया पिया ना, दुनिया अंदर कोई इदां दा एयर कंडीशन नहीं बड़ा तेरा मन नूं ठंडा कर सके। बाहरलियां कंट्रियां च रात बंदा सौंदा, सवेर तक फुट फुट 1.5 फुट स्नो चढ़ जाती है। दूर की जाना, तुसीं इत्थों की गल कर लो, श्रीनगर जिथे ठंडे इलाके ने, जिथे बर्फ पैंदी है, हुण आपां कही जी इन्नी बाहर बर्फ है, बंदा तो ठंडा होना चाहिए, पर बाहर दी स्नो, बाहर दी ठंड बंदे दे अंदर नूं ठंडा। बोलो प्यारिओ, हाजरी लवाओ जी। हाँ, इदा हाजरी लवाओ ना, फिर पता लगता तुसीं सुन रहे जे। मेरे अपने विचार करदा आपो अपना तरीका होंदा। जिवें पुराने समय बातां नहीं सी मां सुणाउंदी, दादी ने कहानी सुनाउणा, उन्होंने कहना पुत्त हंगारा भरी जा, हंगारा भरन दा अर्थ हुंदा भी तू सुन रहा वा। ऐ पूरी हाजिर होके, ऐन चतन होके, ज्ञानी होए सो चतन होए, भावें थोड़ा टाइम ही बैठी आप। हुण चंदन ठंडा हुंदा है, सर्दी की रुत भी ठंडी, चंद्रमा भी ठंडा, तो पातशाह जी कहते हैं चंदन चंद ना सर्द रुत, मूल ना मिटे हई काम। ये सारे रल के भी तेरे अंदर की तपश नहीं घटा सकते। आंदे नहीं, अज साह बड़ा गर्म जी, अज गर्म का अर्थ की, उन्होंने 102 बुखार वा। बोलो साध संगत जी, गर्म का अर्थ की होंदा भला, भी वह बदन तप रहा, यानी कि अंदर अग लगी पई है। तो अग लाई किहने भला? आप बलेम ला सकते हैं जी, फलाने ने साडे घर नूं, साडी दुकान नूं अग लाती, साडे कारोबार का नुकसान करता, पर जिहड़ी अंदर अग लगी है ना, इहदा किसी दूजे सिर बलेम नहीं हैगा, अग खुद आप लाई है, आप लाई। इस नूं आख्या सी जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा तार। जगत सड़ रहा, तृष्णा की अग विच खिज रहा, कलप रहा। इस नूं आख्या सी जियो तपत है, बार बार तपदा जियो, तप तप खपै जै तन। हुण बाणी ते मन ने याद करनी है, शब्द तन वरत्या, क्योंकि तन विच मन आ ना, तन भांडा वा जिहदे विच मन शब्द नूं, ज्ञान नूं ग्रहण करके बैठा। हुण पातशाह जी किड्डी प्यारी विचार बख्शिश कर रहे ने, जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी विल लाए। हुण हजूर ने किड्डी प्यारी विचार दिती है, किड्डा प्यारा ख्याल दिता है कि शब्द दा साडी जिंदगी विच किड्डा वड्डा प्रताप है, किड्डा वड्डा महात्म है, किड्डी वड्डी विचार है भी असीं किद्दां जिंदगी नूं जीना है, ते किड्डा वड्डा खजाना सानूं बाणी विच बख्शिश कीता गुरुदेव ने। हुण जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार, जै तन बाणी विसर जाए। जिस तन विचों बाणी मनफी हो जाती है, विसर जाती है, तो फिर महाराज कहते ने पता उसकी हालत किदां दी हुंदी है, जो पक्का पक्का रोगी समझो साध संगत। मान लो किसी बंदे नूं रात बुखार चढ़िया, सवेरे लै जाता है, जिन्हों रात बुखार चढ़िया सवेरे लै जाना है। पर जिहड़ा पक्का रोगी हुंदा है, जिहदे नसूर बन के जख्म पाक वहिंदी है, जख्म 24 घंटे पाक उहदे जख्मां चों रिसदी रहिंदी है। तो कई बार ऐसे घरां च बंदे भी हुंदे ने, मरीज हुंदे आ, जिन्हां तो घर दे जी भी तंग आ जांदे आ, साडे कोलों इहदे रूम विच हुण वड़िया नहीं जांदा। जो पक्का रोगी विल लाए, किहदे कोलों? जिहदे मन विचों सच दी विचार मनफी हो गई। हुण गल चल रही सी, प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, हे प्रभु जी तुसी मेरे सुखां दे दाते हो। हुण जतन सारे बंदे ने सुख लई कीते, जतन बहुत सुख के किए, जिन्ने भी बंदा जतन करदा सुख लई करदा। दुकान खोली सुख लई, खेतीबाड़ी करदा सुख लई, ट्रांसपोर्टर सुख लई, देश तो विदेश गया सुख लई, घर च बच्चे होए पढ़ाया लिखाया, नौकरी पेशा सब सुख लई कीता। जतन ते सारे सुख लई कीते, दुख लई ते जतन ही कोई नहीं कीता। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। दुख लई कोई जतन नहीं कीता, फिर दुख आए किथों?
जे सारे यतन ही सुख लिए कीते, दुख किद्दां अपने आप आ गए? हुण जेड़े काम लई मैं यतन भी कोई नहीं कीता, वो चीज़ मेरी जिंदगी च वध आ रही है। जेड़े काम लई मैं दिन रात यतन कर रहा, सुख मेरे लागे ही नहीं आ रहा। हुण एक सुख है साडे तन दा, सहूलतां ने, तुसीं घर बनाया, सोहना फर्नीचर लै आओगे, तुहाडे घर विच हर सहूलत होएगी, ये तुहाडे तन दे सुख ने। पर जिहड़ा मन दा सुख है, आत्मक सुख है, जे सिर्फ सहूलतां ही बंदे नूं सुखी करदियां हुंदियां ना, ते वड्डे वड्डे अमीर लोग डिप्रैशन के शिकार कदी ना होंदे। उन्होंने फिर धर्म की की लोड़ सी? क्यों? जे हिंदू परिवार नाल संबंधित होएगा तो हवन कराएगा, जे सिख परिवार नाल संबंधित है तो वह भी अपने घर भावें वो पाठ करावे, कीर्तन करावे, कोई समागम रखावे, चाहता वा भी किते ना किते साडे घर च सुख शांति आ जाए। इसदा मतलब पैसे नाल नहीं ना आई, सोना सी वाधू उहदे नाल नहीं ना आई, ये बाहर की अमीरी है। हुण जदों गुरु साहब जी ने आख्या सी, प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, तो नौवें पातशाह दे श्लोक पढ़ो। नौवें पातशाह जी की कहते हैं? देखो विचार कितना एको है, जो तोहा जुगत साए साहिब काया फिर पलटिए। जिहड़ी गल गुरु नानक साहब जी ने कही, ओह गुरु पंजवें पातशाह जी ने, ओह गुरु नौवें पातशाह जी ने, ओह भट्ट साहबाना ने, ओह भगत साहबाना ने। परिवार दे विच 2-4 जियां दा एक मकान की छत थले रहना मुश्किल हुंदा है, 35 महापुरुष इकट्ठे बैठे ने, किन्नी विचार मिलती होएगी, किन्ने विचारां की एक सुरता होएगी, सोच के वेखो ना तुसीं। फिर कमाल की गल है, एक 1100 ईस्वी दे विच होए ने, एक 1400 ईस्वी के लागे शागे हुंदे ने, सीधा 300-350 साल का फर्क है, पर विचार एक ने। इत्थे मां की कुख तो पैदा होया पुत, ਉਹਦੇ विचार मां ना नहीं मिलते, प्यो ना नहीं मिलते, कई बारी भरा भरा के विचार नहीं मिलते। एक मां की कुख चो पैदा होकर दुध भी पीता है, खुराक भी इको जी खाधी है। सारी विचारधारा की गल है कि विचारधारा एक सुर है। तो सब तो विशेष गल एक सी कि जिहड़ा एडा वड्डा ज्ञान दे के खजाना दिता, सानू इकट्ठियां बिठाता, तो सब तो वड्डी विपरवाद उत्ते करारी चोट सी। ये नहीं वेख्या गया किहड़े इलाके च कित्थे पैदा होया, कोई कहते लिया के सारी विचार एक थां ते इकट्ठी कर दी गई। पर अज इस विचारधारा तो सब तो वड्डी समस्या किहनूं है भला? कभी सोच के वेख्या? उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं ये लगदा भी जे ये सारे इकट्ठे हो गए, साडा पखंड लोकां सामने उजागर हो जाना। जेडी मेहनत नाल, इन्नी मुशक्कत नाल एडा वड्डा खजाना साडे कोल पहुंचिया, तो हर सिख दा फर्ज बनदा है कि मैं मोढे नाल मोढा जोड़ के तुरां, मैं अपनी जिम्मेवारियां समझां। जे साडी कोई मरला 2 मरला जमीन, साडा कोई प्लाट मार लवे, साडी कोठी ते कोई कब्जा कर लवे, असी उदों तक चैन नाल नहीं बैठदे जदों तक असी वो अपना हक नहीं लै पाउंदे। पर जदों मसला आया सिद्धांत दा, विचारधारा दा, उदों बंदा कहदा असी इतों की लेना जी, गुरुद्वारे जाईदा है, मत्था टेकीदा, देग लैके ते अपने। भलिया तेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। अज पखंड सिर चढ़ के बोल रहा है, अज कर्म कांड, बुराई, विषय वकार, पंजां दी गल आउंदी बाणी च, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, ये 5 ही लड़ाई के कारण ने। जे किसी हसबैंड वाइफ की लड़ाई है, भरा भरा की लड़ाई है, प्यो पुत्र की लड़ाई है, किसी पिंड शहर की लड़ाई है, किसी एक देश की दूजे देश नाल लड़ाई है, इन्हां 5 तो बिना 6वां कारण ही कोई नहीं हैगा। इसे नूं बाणियां दी पंच मनाए, पंच रसाए। 5 नूं मना ला ते 5 नूं गुस्से कर ला, 5 ना बना ला, 5 ना गुस्से कर ला। हुण फैसला तेरा वा, तू बना के किहना ना रखनी है ते विगाड़ के किहना ना रखनी है, फैसला हुण तेरा है, तेरे ते जबरदस्ती कोई नहीं। जे तू 5 वकारां दे नाल सांझ पा के रहेगा, जिंदगी दुखी होएगी। जे 5 गुणां नाल सांझ पा के रहेगा तो जिंदगी सुखी होएगी। तो नवें पातशाह जी की कहते हैं? सब सुख दाता, सारे पढ़ो, सब सुख दाता। अच्छा हुण सुनियो, आप नौवें पातशाह महाराज नूं पुछिए, धन गुरु तेग बहादुर महाराज उस रमे हुए परमात्मा तो बिना कोई होर भी सुखां दा दाता हैगा? तो की आंदे भला नौवें पातशाह? दूसर नाहे, पढ़ो सारे, दूसर नाहे। महाराज कहते दूजा है ही कोई नहीं।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਪਿਆਰਿਓ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ? ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਆਇਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਦੂਜਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ। ਬੀਠਲ ਸ਼ਬਦ, ਦਮੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਰਾਮ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਹਿਣ में ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੋਈ ਰਾਮ ਸਭੈ ਕਹੇ ਸੋਈ ਕੌਤਕਹਾਰ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਈਏ, ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬੰਸਰੀ ਕੌਣ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ। ਰਾਮ ਬੇਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਊਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਹਣ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਵਮਹੀ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੈ, ਉਹ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਬੰਸਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਹਵਾ ਚੌਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੌਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਲ ਘਮਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਥਾਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਚੋਂ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ ਬਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 13-14 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੇਮ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਇਦਾਂ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਇਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀਨਰੀ ਲਾਉਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦੋ। ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋਗੇ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਨਰੀ ਲਾ ਦੇ। ਘਰ ਵੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੁੱਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਡੂਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੀ,
दूजा आंदा मैं कल नूं जलेबियां लियाऊं, मेरी जलेबियां च भी श्री साहब पाओ जी। परसों कल नूं कोई दूजा बंदा कहेगा जी साडे परिवार की शरधा है, असीं ते आह चीज़ लैके आउणी है। सिर्फ कड़ाह प्रसाद दी देग। हुण जे कोई प्रबंधक सियाणा, जे कोई रागी प्रचारक ग्रंथी संगत नूं समझाउण दी कोशिश करेगा ते अग्गों पता कहना साडी शरधा है जी। शरधा दे नां ते बड़ा अंध विश्वास फैलाया जा रहा है। शरधा नहीं है, बेसमझी है, अंध विश्वास है। जिहड़ी शरधा हुंदी है ना, उहदी डेफिनेशन बाणी चों पढ़ो। जिन शरधा राम नाम लगी, तिन दूजे चित ना लाया राम। हुण साडी समस्या यह है कि असी बाणी खुद आप पढ़ के वेखी नहीं। असी बाणी पढ़ा छड्डी किसे कोलों, किसे ने पढ़ छड्डी, किसे ने सुन छड्डी, आप असी बाणी तक आए ही नहीं। आशरात दिन चल रहे हैं हुण तुसीं वेखिओ, जींदे माँ बाप की सेवा करो, जिउंदे लिया के बजुर्ग नूं फ्रूट अपने हत्थी कट के दिओ, जिउंदे अपने हत्थी दलिया बना के दिओ, सूप बना के दिओ, खिचड़ी बना के दिओ, जिउंदे सेवा करो। जिउंदे वेखो भी मां नूं की जरूरत है। इन्हां नूं डॉक्टर ने आख्या तुसीं फ्रूट देना है, इन्हूं हल्की चीज़ बना के देनी है, ताज़ा फुलका ला के देना है। जिउंदे जी सेवा करो, जिउंदे पुछना नहीं, मगरों थाल ग्रंथियां प्रचारकां बाबियां दे मगर चक्की फिरने ने भी तुसीं छको जी, साडे पापा जी दे नां दी अरदास करो जी। हुण जीवत पितर ना बोलो सारे जी, जीवत पितर ना। हुण इहदा मतलब की सी, जिउंदे कई वारी हुण बजुर्गां दा जी करदा भी आह सब्जी बना के मैनूं दे दो, उदों आंदे चुप करके खा ला। हुण कई परिवार है जिहड़े बजुर्गां दी रिस्पैक्ट पूरी करदे, जो घर च कहा हाँ जी सत्कार करिए, पर कई घरां च कहंदे चुप करके भी जो बनया भाई इहनूं खा लो। अच्छा मगरों फिर कहना जी खीर भी बनाओ, पूड़ियां भी बनाओ, तरह तरह के पकवान लिया लिया के रखो। अच्छा ये की है, ये खवाउण नाल जी उन्हां दा मनना यह भी ये खाधा होया भोजन साढ़े बजुर्गों तक पहुंच जाता है। हुण बाणी च की लिख दिता, जीवत पितर ना माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे कौआ। हुण कौआ कुकर किवें, कुछ रिश्तेदार खा गए, जिहड़ा थालियां जूठा पिया सी कां कुत्ते खा गए। मोको कुशल बतावो कोई, मैनूं दसो इहदे नाल शांति किदां घर च आजू। हाँ शांति ते आउणी सी जिउंदे जी, भी घर च आपां लड़ाई मुकाईए, जिहड़ी चीज़ हैगी आपां प्यार नाल बना के, मरीज है घर च बुजुर्ग है उन्होंने अपने हत्थीं बना के देईए, इहनूं जरूरत है। साढ़े मगरों थाल चकदे जे हिंदू वीर ने चलो अपना करते हैं, सिख परिवारों में अज हो रहा है, 5 बंदे लभ के स्पैशल घर खड़े जाते हैं, स्पैशल फिर उन्होंने दिनों के उन्होंने खवाया जाता। हुण मान लो जे तुहाडा मनना यह है भी इन्हां दा खाधा साडे बापू तक पहुँचना है, तो तुहाडे बापू जी नूं ते शुगर सी, वो तो मिठा खांदे नहीं सी, तुसीं खीर च मिठा पा के खवा रहे जे। हुण कईयां दे मरीज इंजैक्शन लाउंदे ने खाना खाण तो पहलां शुगर दा। हुण जां ते जिहड़े 5 आए उन्हां दे ढिड च भी लाओ एक, वेखिओ सारे भाई दे किद्दां अगे लग के, तुसीं कहो जी टीका लाउणा तुहानूं फिर रोटी खानी है, नहीं तो साडे पापा जी दी बीबी जी दी शुगर वध जानी है। हुण कल नूं मान लो किसी दा बापू ड्रिंक करदा होवे, बोलो हुण खाली थां तुसीं भर दिओ, पापा जी दा श्राद्ध कराउणा है, तुसीं मगरों इहदा गलासी लैके ग्रंथी प्रचार दे मगर तुरे फिरो जी भी तुसीं भी भाई आप पापा जी दी तो रोटी नहीं पाई ਜਦੋਂ तक पींदे नहीं सी, सियापा पै गया ना। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਢੋਰੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਬਲਦ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਪੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੈਸੇ बैल तेली को जान तो कई कोस चलियो। भाई गुरदास जी कहते बलद नूं इंज लगदा सी मैं तो कई को पैंडा तय कर लिया, पर जो दे अखां तो खोपे लाए नैन उगलत वहीं ठाऊं टिकानो है, अखां खोल के वेखियां विचारा उत्थे चक्कर ला रहा सी। असीं भी उत्थे चक्कर लाई जाने, उत्थे घूमी जाने, उत्थे दादा जी, उत्थे परदादा जी, उत्थे पिता, उत्थे ही आप। थोड़ा जिहा अगे तुर के समझ के वेखिए, बाणी ते जीवन जाच दसदी है, बाणी तो सानूं दसदी है वैर विरोध ईर्खा बेईमानी ठगी लुट कसुट। मैं गल कर रहा सी कि साडे बहुते बाणी इस करके भी समझना नहीं चाहते, बाणी कहती है ठजनहारा गुर का शब्द रखवारे, गुरु का शब्द जिहड़ा है ना वो साडी राखी करदा है।
रखवाला क्यों रखा जाता है, पहरेदार क्यों रखे जाते हैं भी कोई साडे ते तुसीं वेखिया ना कई वारी अमीर घराणिਆਂ वाले बने रात ਨੂੰ जागते रहो, आ दुकानां दे अगे भी पहरेदार रात ਨੂੰ जागते रहो दा हुक्का दिंदे आ काहदे लई कि कोई भाई बाहरों आया बंदा तुहाडे लोकल दुकान दा कोई शॉप दा कोई नुकसान ना कर देवे, रखवाला। हुण इत्थे शब्द वरतिया गुर का शब्द रखवारे, गुरु दा शब्द साडी राखी करदा है। चौकी चौगिरद हामा, इहनूं चौकी पढ़ना है। चौकी पता की है, जिवें थाना हुंदा है, थाने तो बाद चौंकियां उन्हां इलाकिਆਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ जिथे क्राइम ਵੱਧ होवे। जिस इलाके 'ਚ क्राइम ना होवे उत्थे चौंकी की लोड़ नहीं पैंदी। जिथे क्राइम ਵੱਧ होवे उत्थे पठाने तो बाद कहंदे इत्थे निक्की जी चौंकी बिठा दिओ, क्योंकि फिर इस इलाके नूं चौंकी नूं हैंडल करना थोड़ा जिहा सौखा होएगा। कहंदे चौकी चौगिरद हमारे। हुण आ जिहड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा कहंदे इत्थे जिहड़ा क्राइम हो रिहा ना, इत्थे शब्द की चौंकी बवेगी तां क्राइम बंद होएगा। आपां रामकली राग अंदर भगत कबीर जी का शब्द पढ़ते हैं ना, संता मानो संता मानो। अच्छा एक बने बाणी च भगत कबीर जी कहते ने गज साडे तै तै धोतियां, पढ़ो सारे, तेरे पाए न गली च ना जप लोटे हाथ, ओए हर के संत ना बानारस के। अच्छा एक बने ठग कहते इत्थे आंदे संतां मानो, संतां नूं मन्नो भी। ਇਹਦਾ मतलब भगत कबीर जी अपने शब्द आपे कट रहे आ नहीं, एक बार जाके अर्थ जरूर पढ़ियो। उत्थे संतां दा अर्थ की है, संत बाणी विच कई अर्थां च आया है। उत्थे दैवी गुणां नूं आखिया संत, संतां मानो, दैवी गुण रूपी संतां नूं मन्नो, उन्हां दे पैरी लगो, उन्हां नूं जी आया आखो, उन्हां नूं अपने घर लैके जाओ, इन्हां दी रिस्पैक्ट करो। सत संतोख दया ते दूतां डानो, जिहड़े दूत वा काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां नूं डन दे दिओ, इन्हां नूं सजा दे दिओ ते संतां नूं मान लो। हुण जे आपां इन्हां शब्दां दे अर्थ नहीं करांगे ते फिर लोकां ने की सोचना भी जिन्हां दे चोड़े लंबे आ, ਜਿਹੜੇ ਗੜਵਈ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ, दैवी गुण रूपी संतां नूं मन्नो ते दूतां नूं डानो। हुण कई कहेंगे नहीं जी संत दा अर्थ फिर बंदा ही आया, तो फिर भगत कबीर दे श्लोक आ भी पढ़ो। कबीर ऐसा कोई ना जन्मयो अपने घर लावे आग। इदां दा कोई वरला ही सूरमा जिन्हें अपने घर नूं अग लाई है। पांचों लड़का जार कै रहे राम ले वलाग। पंजा लड़कियां नूं साड़ के ते राम वैगुरु अकाल पुरख नाल सुरत जोड़े। कोई वरला सूरमे इदां दा पैदा होया, तो फिर ये जे अर्थ नहीं करांगे तो फिर की अर्थ बनिया दा भी अपने घर नूं अग ला दो ते अपने पंजे लड़के साड़ दिओ। जे तुसीं रब दे रस्ते ते तुरना, ना किसे दे 5 लड़के होण, ना वो 5 लड़के साड़े। लोग बनाउंदे घर रहण लई, भगत कबीर जी कहंदे घर नूं साड़दे पाई। तो फिर आप इहदे अर्थ की करांगे, भाव अर्थ करांगे। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो, इदां दा कोई वरला सूरमा या अपने घर लावे आग। इत्थे किहदा अर्थ की है, ऐस हिरदे विच जिहड़ा तू विषयां वकारां दा अपना एक वखरा घर बनाया सी ना, इहनूं साड़ दे, इहनूं आप ही अग ला दे। पांचों लड़का जार कै, जिहड़े 5 लड़के आ काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हां नूं अपने हत्थीं साड़ दे। रह राम ले वलाग। जे इनू साड़ेगा तां शांति आनी आ, जे इन्हां ना साड़िया इन्हां तेरे अंदर अग बाली रखनी 24 घंटे। कबीर को है लड़का बेचई, लड़की बेचे कोय। लड़का की है काम करो लोभ मोह हंकार, ते लड़कियां की है आसा ते तृष्णा। जे तू इस रस्ते तुरना तेनू लड़के ते लड़कियां बेचनियां पैणियां। केड़ियां? ये मन दा टब्बर अपना। बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल। हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। इत्थे मन रूपी कमाल दा पुत्र पैदा होया। ते पता साडे संप्रदाय दे की अर्थ करदे आ,
साध संगत जी, भगत कबीर दे घर एक पुत्र पैदा होया जिहदा नाम सी कमाल, कमालू। ते वो पुठे रस्ते पै गया ते रब का नाम छड्ड के ते घर ले आया माल, ते टब्बर डुब गया। वो भलिओ, इत्थे गल मन दे टब्बर दी हो रही है, तन दे टब्बर दी नहीं हो रही। मन की अपनी फैमिली है, तन की अपनी फैमिली है। जो गुरु अमरदास जी कहते हैं ना कि ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाल है। इत्थे भी मन दे टब्बर की गल हो रही है, विशा मन का चल रहा है। प्यारिया मना, आड़ा कुटुंब वेखदा पिया, इन्हें तेरे नाल नहीं तुरना। केड़ा कुटुंब? काम क्रोध लोभ मोह हंकार जिहड़ा टब्बर पाल के बैठा, इन्हें तेरे सच्चाई के रस्ते ते तेरा साथ। ते साडे पता कहंदे आ टब्बर तेरे नाल नहीं जाना, इस करके तू इहदे नाल चित क्यों ला के बैठा है? ये कुटुंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले साथ तेरा, ते इस नाल क्यों? ईमानदारी नाल दस्सिओ, तुसीं गृहस्थी बैठे हो कि एक इंसान नूं अपने मां बाप भैणां भरावां वाल ध्यान नहीं देना चाहिए? जो नहीं देवेगा तो समाज कहेगा तू गैर जिम्मेवार है। घर तेरी मां बीमार पई है, पिता बीमार पिया है, पत्नी नूं दवाई की जरूरत है, बच्चे नूं स्कूल विच फीस वर्दी चाहिए है, तू आना बाणी च लिखिया जी चले ना ही तेरे नाले, इहदे नाल चित नहीं लाउणा। ये तो जेड़े लोग परिवारों तो भगौड़े हो गए, पातशाह बाहों फड़ फड़ के उन्होंने गृहस्थ विच लैके आंदा, भलिओ सिद्ध साहब बैठे पर्वती कौन जगत को पार उतारा। इत्थे गल मन दे टब्बर दी हो रही है, तन दे टब्बर दी नहीं हो रही। इत्थे असीं टपला खा लिया कि असीं मन ते तन दे टब्बर नूं इकट्ठा कर दिता। जेड़ा बंदा तन दे टब्बर प्रति सुचेत ना होवे उन्होंने तो समझाया जाता। नाले जेड़े गुरु अमरदास महाराज जी की पौड़ी है, उन्होंने अपना भी परिवार है, उन्होंने पत्नी है, उन्होंने बेटियां ने, उन्होंने बेटे ने, उन्होंने पिता जी ने। पर इत्थे पातशाह जी कहते ने चले ना ही तेरे नाले, तेरे नाल नहीं तुरना, ऐसा कम मूले ना कीते है जित अंत पछोताई है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरा नाले। तो फिर इस गल नूं समझण दी लोड़ है, मन का एक अपना परिवार है, तन का एक अपना परिवार है। इस नूं आखिया सी दीन दयाल भरोसा तेरा सा परिवार। मैं अपने मन का सारा परिवार हे दीना ते दया करन वाले वाहिगुरू जी तुहाडे इस बेड़े विच चाढ़ दिता। हुण अखां गलत नहीं वेखदियां, कान गलत सुनते नहीं, जुबान गलत बोलती नहीं, पैर गलत रस्ते ते तुरदे नहीं। हुण मैं अपने सारे का सारा टब्बर तुहाडे इस नाम के जहाज में चढ़ा दिता वा। तो पातशाह जी की इस गल नूं समझना बड़ा जरूरी है। एक मन का टब्बर है। हुण आपां भाई सत्ता बलवान जी की वार पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी के वड्डे भैन जी, उन्हों का नाम बेबे नानकी जी आ। पर भाई सत्ता बलवान जी की आंदे नाऊ करता कादर करे, क्यों बोल होवे जो खीम दे गुणा। 7 भैन भराव हैं, दैवी गुण गुरु नानक साहब जी के सके भैन भराव। मन दे भैन भरा गुरु नानक साहब जी के दैवी गुण वा, ते तन दी भैन बेबे नानकी आ। इन्हां दोनों गल्लां नूं वखरा वखरा समझना। तन की खुराक लंगर वा जिहड़ा छकांगे बाद च, मन की खुराक आ जेड़ा तन का सौदा वो बाहर पिया। कणक किसी ने बीजी है, वड्डी किसी ने आ, आटा किसी ने पीसिया वा, पकाई किसी ने आ, खा मैं लई आ। सब्जी किसी किसान ने अपने खेत च उगाई है, कट्टी किसी ने आ, ट्रक च लोड किसी ने कीती आ, मंडी च कोई लैके आया, घर कोई होर लैके आया, कट्टी किसी होर ने आ, बनाई किसी होर ने आ, खाधी मैं आ। ये तन की खुराक है। पर जी मन की खुराक ਇਹਦਾ सारा मटीरियल बंदे दी तेरे अंदर पिया होया। जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे, जिन जिन दी हो रिजक भी देऊगा। केड़ा रिजक? आटा दाल चौल। फिर तो कल नूं बंदा क्लेम कर सकता रब ने जिन देती, हुण आटा चौल कौन दो बई। इत्थे गल आटा चौल गुड़ दी नहीं हो रही, इत्थे गल मन दे अनाज की हो रही है। तो मन का अनाज कित्थे है? जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे,
सब घट भीतर हाट चलावे। सारियां दे हिरदे च हट खोल के बैठा हो रब। लई जा सौदा जिन्ना मर्जी। ते उस बंदे नूं झल्ला ही कहोगे ना, जिहदे महल्ले च दुकान होवे ते सब कुछ उत्थों मिलता होवे तो तीजे महल्ले समान लैन जावे। ते अज सिख भी तो कर रहा। वन च आख्या समान तेरे अंदर पिया। घर ही मैं अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। सारे बोलो। ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने। सारे बोलो जी। परम दा परम भुलाया, मन रे थिर रहो। हट अंदर ही आ, लै सौदा इथों लई जा। सब घट भीतर हाट चलावे। मत विच रतन जवाहर माणक जेक गुर की। ये सारा समान अंदर पाया उस वैगुरु ने। कड्ढी जा जिन्ना मर्जी, वरती जा, जिन्ना मर्जी। अंतर खूंटा अमृत भरिया, शब्दे काढ़ पीए पनहारी। अंदर खूह भरिया पिया अमृत दा, शब्द की लाज नाल कड्ढी जा जिन्ना मर्जी, मुकना नहीं तेरे कोलों। लाहौर सौखा समझ लो। हम धनवंत, असी धन वाले हाँ, भागठ भागां वाले हाँ। सच ना है क्योंकि सच्चा नाम है कोल। हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यू दादे का। सारे बोलो। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। प्यो दादे का खजाना खोल। साध संगत जी, दादे परदादे ने कोई प्लाट लिया होवे, कोई 2-4 मरले जमीन आसे पासे लई होवे, पोतरा दावा करदा कि नहीं साडी आ कि नहीं करदा? बोलो साध संगत जी। करदा ना? साडे दादे दी आ भाई, साडे पापा जी दी आ, दावा करदा ना? दुनियावी धन दौलत उत्ते दावा करदा, ते इस प्यो दादे दे खजाने नूं कदी खोल के वेखिया ही नहीं। ये तो कहते ग्रंथी सिंह ये तुहाडा वा, लै जाओ भाई साहब जी, असीं सगन ला लिया होना। इदां ही कहते वो टावा परवारी है। सगन तो बाद जे कोई छड्डण आ जाए स्वरूप महाराज का, मेरे दबदबा हनेर मचिया होंदा भी दबदा स्वरूप हुण तुसीं लै जाओ, क्योंकि साडे अपने मुड़ के हुण प्याले ना प्याले खड़कने। तो ये सोचते भी स्वरूप हुण महाराज का, हुण तुसीं लै जाओ भाई, क्योंकि साडा अपना काम हुण इत्थे शुरू होने वाला। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। अच्छा, आ नुकता ध्यान ना सुनियो, कितनी प्यारी गल है। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना। जो मैं प्यो दादे का खजाना खोल के वेखिया, खजाना मैं बाहरों खोल के वेखिया, ते निधान अंदरों प्रगट हो गया। ता मेरे मन। अच्छा, खोलिया बाहरों आ ते खजाना अंदरों प्रगट हो गया। अंदर ही आ सारा कुछ बंदे तेरे, तू बाहर भजा फिरदा। तू आना मैनू एक होर सुनियो, अज तक तुहानू कोई इदां दा बंदा मिलिया भी जिन्हें कहा मैं फलाने को सबर लैके आया, मेरे को तो है ही नहीं सी। इदां दा बंदा तुहानू कोई बंदा मिलिया? यार मेरे को ना संतोख नहीं सी हैगा, मैं फलाने बंदे को लैके आया, उन्हें मैनू संतोख देता, हुण मैं वरतन लग पिया। मेरे को दया नहीं सी हैगी, मैं तो फलाने को लैके आया। दया भी तेरे कोल वा, संतोख भी तेरे कोल वा, धर्म भी तेरे कोल वा, सिर्फ तेनू गुरु इनू वरतन की जाच सिखाउंदा। दया धर्म संतोख सब कुछ तेरे को हैगा वा, सिर्फ गुरु साडा ध्यान दिवाउंदा भी इनू वरत ला भाई, तेरे कोल हैगा, सारा कुछ हैगा। अमृत नीर ज्ञान मन मज्जन 8 60 तीर्थ संग गहे, गुरु उपदेश जवाहर मानक। गुरु का उपदेश जवाहर मानक। 2-4 तोले सोना पिया हो ना, किदां साम साम के रखीदा। गुरु का जिहड़ा उपदेश है यह भी जवाहर मानक वा। कदी इहनूं सांभिया? कदी इहदी कदर करने की कोशिश की? सधारण तो सधारण बंदा साडे घर गल करे, तुसीं उहदी गल वल ध्यान ना देवो, वो गुस्से च आ जांदा, यार मैं एडी वधिया गल कर रहा, ये मेरी गल क्यों नहीं सुन रहे? 35 महापुरखों का उपदेश है, कदी ध्यान दिता? एडे कीमती बचन ने मेरे सतगुर दे, एडे कीमती ख्याल मेरे गुरुदेव जी दे। साध संगत जी, सच्ची महाराज का प्रकाश पुरब मना रहे हैं तो अपने घर च प्रण करो, भावें 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा घर च बाण दियां सेंचियां रख के, मेरी भैनों
आप गुरबाणी का सहज पाठ करने की कोशिश करो। एक मैं बेनती होर करनी चाहना, जिन्हां दे पुत्रां धीआं दे जे आनंद कारज होने ने, उन्हां बच्चियां दे सामने एक बेनती करो, पुत तू मोबाइल मंगया मैं मोबाइल लैता, तू लैपटॉप मंगया मैं लैपटॉप लैता, तू जिहड़ी चीज मंगदा मैं बच्चिया मेरी धीए मैं तेनू लैके देना वा, पर मेरी एक मंग आ जिदन धीए पुत तेरा आनंद कारज होवे, अपने आनंद कारज का सहज पाठ खुद आप करी। मंगी जा सकती है ना मंग, अपने बच्चों के सामने रखी जा सकती। बोलो प्यारिओ, क्या जा सकता ना। तो मैं तुसी मनोगे बच्चे बच्चियां साडे इस गल दे उत्ते पहरा देणगे जे साडे मां बाप एक मंग रखणगे तां, पर वो मां कहेगी जिहड़ी आप करदी होएगी। ये गल तो उही बाप कहेगा ना जिहड़ा आप गुरबाणी पढ़दा, जिन्हें पाठ ही किसी थां ते करा छड्डिया, आप कदी बाणी पढ़ के नहीं वेखी, वो बच्चे नूं किदां कहेगा जी। इत्थे ते आप उही बंदा कहेगा जिहड़ा आप बाणी पढ़दा है। बाणी नूं आप पढ़ना ते आप विचारना है, आप समझण दी कोशिश करनी है कि मैं अपनी जिंदगी विच किदां लागू करना है, किवें गुरु दे विचार अपनी जिंदगी विच समझने ने। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु साहब जी ने जिहड़े विचार दिते ने वो बाकमाल है कि बाणी पढ़नी है, बाणी विचारनी है, गुरबाणी बनी है। गुरबाणी बणीए का अर्थ यह है कि जो गुरु का सिद्धांत है उन्होंने अपनी जिंदगी में लागू करना महाराज ने की सानू सिखाया है। तो मैनू विश्वास है जे असीं अपने बच्चे बच्चियां तो तुसीं वेख्या कई घरां च जिहड़ियां धीआं पुत कीर्तन करदे आ, जिदन उन्हां दा आनंद कारज हुंदा उदन वो अपने आनंद कारज ते संगत विच आप शब्द बाणी पढ़दे आ। कई अफसर बने बच्चे, उच्चे अहुदियां ते गए, पर समाज विच सुनेहा गया कि साडे बच्चे पुत धीआं बाणी नाल भी जुड़ सकदे ने। एक कर्मकांड अपनी जिंदगी चों बाहर कड्डो। बाणी साडे मन का बोझ हल्का करदी है। अपने बच्चों नूं ईमानदारी सिखाओ कि पुत किसी नूं 1 रुपया खवा आई, किसी नाल ठगी मार के ना आई। सोचो जिदन तुहाडा बच्चा तुहानूं घर आण कहे, तुसीं कहो कि मैं अपने बच्चे नूं जेब खर्च दिता सी, ते तुहाडा बच्चा कहे कि मेरा नाल दा दोस्त है, ओहदा पिता बीमार रहिंदा है, ओहदी वो फीस नहीं सी दे सकदा, डैडी मैं एक गलती की है, अपने जेब खर्च विचों मैं अपने दोस्त की अद्धी फीस तारी है। अपने पुत दा मत्था चुम्यो, तुसीं एक ईमानदार पुत्र नूं जन्म दिता है। सैकड़े पाठ करन नालों वड्डा परोपकार तुहाडे अज पुत ने तुहाडी धी दसे, डैडी तुसीं मैनूं जिहड़ा कॉलेज विच जेब खर्च दिंदे सी नाल उहदे विचों मैं पैसे बचा के अपनी मेरी एक सहेली है, ओहदी मां बीमार सी, उह ते खर्चा आ गया, ओहदी फीस नहीं सी तरदी, मैं अद्धे पैसे उह ते ला दिते। अपनी धी नूं घुट के गल वखड़ी च लियो कि तुहाडी धी ने ईमानदारी दे नाल कोई चंगा कर्म कीता है। चंगा बीज, चंगी सोच, ते जिथे बच्चा ठगी मार के लैके आवे घर ते मां बाप खुश होण, समझ लो तुसी दुनिया तो चले जाना, पर बच्चों नूं ये राह विखा गए कि ठगियां मारनियां जायज़ काम हुंदा है, ये कोई गुनाह नहीं हुंदा। पाठ भी करना है, बाणी भी पढ़नी है, पर अपने कर्म निर्मल करने ने। इहो धर्म है, सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप। अपने कर्म निर्मल करने सब तो वड्डा धर्म है, अपने कर्म निर्मल करने। तो कभी नोट करके वेखियो, जिदन तुसी सवेर तो लैके शाम तक, सवेरे बैड तो उठन तो लैके रात सौण तक पूरे दिन के कामां ते ध्यान रखियो। अज मैं कहदा माड़ा तो नहीं कीता, मैं किन्ने काम सवारे ने। वेखो रात नूं नींद किड्डी कमाल दी आउंदी है, सवेरे जाग किड्डी कमाल दी आउंदी है। आ डिप्रैशन, मेरा तेजाब बनता है जी, मैनू अज प्रॉब्लम आ गई, ये सब सोच तो पैदा हो रहा। जिन्ना मर्जी ड्राई फ्रूट खाई जाइए, जिन्हें मर्जी वधिया जूस ताजे फ्रैश कड़ पी जाइए, जो मैं सोचना ही पुलठा तो एडी वधिया फ्रैश खुराक के नाल मेरे अंदर तेजाब ही बनना, होर की बनना है। अज तुसीं कई बजुर्गों के चेहरे वेखियो, 70 साल का बजुर्ग का चेहरा दगदा करता है, तो 20-25-30 साल के बंदे के चेहरे वाल वेखण नूं जी नहीं करता। क्यों? क्योंकि सारा संबंध तुहाडे मन की खुशी नाल है। बाणी पढ़दा तेरा मत्था दसना चाहिए, तू पाठ करदा तेरा मत्था सड़िया पिया भाई,
तेरे बथेरे त्यूड़ियां पईयां ने, तू तो खुश रह। नानक भगतां सदा विकास खेड़ा। तुहाडे कोल डॉक्टर लैन दा वीर बैठा होवे, तुसी एक दिन पूरे दिन च एक बार खोल के हस लो, तुहाडे अपने आप ही लीवर एन वधिया, गुरदे साफ, स्किन वधिया। जो हासा ही नहीं जिंदगी च आउणा बंदे दे, हासा उड्डिया पिया। अच्छा चलो किसी दा हासा मन्निया भी अज पैसे है नहीं इहदे को, इहदा कारोबार ढिला मट्ठा चलदा। कईयां दे कोल सब कुछ हैगा, पुत्त भी सैट, पोतरे भी सैट, कारोबार पूरा फिट। बंदिया तू को छड़िया पिया बई। अच्छा उन्होंने अपनी परेशानी नहीं हैगी, कहता गवांढी क्यों कोठी पाई जाता। अच्छा हद हो गई, तेरे बच्चे सब कुछ करी जाते हैं, जे गवांढी ने घर बना लिया, गवांढी ने कोई गड्डी ले ली, तेनों की समस्या है। अज प्रॉब्लम यह है, अज इंसान अपने दुखों तो परेशान नहीं है, दूजियां दे सुखों तो परेशान है। मैं दूजे नूं अगे वाधा होया वेख के अंदरों कर जाना। ये बंधन है जिहड़े सानू अगे वधण नहीं दिंदे। प्रभ जी तू मेरो सुख दाता, बंधन काट, करे मन निर्मल, पूरन पुरख बधाता। गुर का शब्द रखवारे, गुरु का शब्द साडी किदां राखी करदा है। संतां मानो, दूतां डानो, ये कुटवारी मेरी कुटवारी। समझदे हो कोतवाल, जिवें एक शहर च कोतवाल नहीं हुंदा थानेदार, थानेदार दी रात जॉब की हुंदी भला? वो जदों रात नूं घुमदे आ, उहदा मतलब की हुंदा भला? वो इस करके रात पुलिस घुमदी है भी साडे हुंदियां इस शहर दे विच कोई क्राइम ना होवे, लोग साडे सिर ते बेखौफ बेफिक्र होके अपने घरां च आराम नाल सौण। कोतवाल दी ड्यूटी है। इत्थे की है? ये कुटवारी मेरी। सानू भी अपने शहर का कोतवाल खुद आप बनना पैना कि मेरे इस शहर दे विच कोई क्राइम ना होवे, मैं अपने शहर का खुद थानेदार आप बना। ये कुटवारी मेरी मेरी कुटवारी है, मैं कोतवाल बनना है। इस नूं आख्या सी काम क्रोध नगर बहु भरिया। ये भरिया पिया भाई। मिल साधु गज के कहो करी, धन श्री गुरु, उच्ची बोलो, धन श्री गुरु। मिल साधु खंडल खंडा है। आड़ा नगर आ ना, एक गंदगी ना भरिया पिया, साधु गुरु नूं मिल के इनू साफ कर ला भाई। कोतवाल बन जाए, थानेदार बन जाए। जिवें थानेदार नहीं रात नूं घुमदा इदां भी इत्थे कोई क्राइम ना होवे, तू भी पूरी पहरेदारी कर भी इत्थे क्राइम ना होवे कोई। इदां अंदर क्राइम होण लगदा, लालच कहंदा भरा ना ठगी मार ला, भरा दा हक खा जा, उत्थे उहनूं नपदे भी ना 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 इत्थे क्राइम नहीं होण देना। इस क्राइम ने भरा नूं मेरे तो दूर कर देना। मेरा वधिया दोस्त हैगा, क्राइम अंदर होण लगा, उन्हें ना 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 चंगा दोस्त नहीं खोना चाहता, मैं चंगी रिश्तेदारी नहीं खोना चाहता। क्राइम अंदर क्राइम हुंदा, अंदर भन तोड़ हुंदी बंदे दे। इहो बाणी सानू सिखाउंदी है। संतां मानो दूतां डानो, ए कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पांव पलोसों, केस जवर कर फेरी। हम कूकर तेरे दरबार, अहीं कूकर वां पर दरबार तेरे दे कूकर हां महाराज। लोग आंदे आ तू कूकर वां, कहंदे मैं मानना कहना कूकर वां, पर कूकर किहदा? राम दा कूकर। कबीर कूकर राम को, कबीर कूकर आ पर किहदा? राम को। मोतिया मेरो नाओ, मोतिया समझदे हो? मोती महंगा हुंदा ना, कहंदे जे मेरा राम महंगा तो मैं उहदा कूकर हां, मैं कोई सस्ता होएगा फिर। तुसीं वेखिआ कई वारी अफसर दा जिहड़ा कुक हुंदा ना, लोग ਉਹਦੇ ਕੋਲ भी सिफारिशां करा के काम कर लेंगे, क्योंकि ਉਹਦੇ हथ का खाना खांदा अफसर। कई भी वेखिआ ना बड़े, हुण मान लो DC का कुक होवे, कुकिंग करदा होवे जिहड़ा, ਉਹਦੇ कोल भी माड़ी मोटी सिफारिश करा के लोग माड़ा मोटा, क्योंकि अगला कहता माड़े मोटे बंदे दा कुक नहीं हैगा भाई, मैं मेरे हथ का खाना SSP खांदा है, मेरे हथ का खाना DC खांदा है। तो वो अगला भी फिर DSP जिन्नी पावर रखदा, करदा कुकिंग ही आ, पर पावर ਉਹਦੀ बोलो सारे वो DSP जी रखता, वो फिर काम कराते भी तू तो लागे रहना, तेरे हथ दियां वो सब्जियां बनिया खांदा, तो तू फिर इन्ना काम करा दे। हुण सोच के वेखो, जिहड़ा अफसर का कुक होएगा वो भी लोग सिफारिशा करते, जिहड़ा राम का कूकर होएगा वो किन्नी पहुँच होएगी। जे मेरा राम एडा उच्चा तो मैं कूकर भी फिर ओदा ना, तो तां ही आख्या जे तुसीं मैनूं कूकर ही कहना तो फिर मैं कूकर हैगा वां, पर किसी पोलीटिकल बंदे दा नहीं।
ना किसी अखौती धार्मिक बंदे का। मैं कूकर राम दा वां, आओ अपने गलों 'च पटे पवा लीए ते लोग कहण तुसीं कूकर हो, तो कहिए हाँ कूकर हाँ, हिक ठोक के कहने कूकर हाँ, पर कूकर कहते हाँ राम दे कूकर हाँ, अकाल पुरख दे कूकर हाँ। कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाऊं, गले हमारे जेवरी जे खिंचे ते जाऊं। जिन्होंने जिंदगी 'च एक गुण अपनाए उन्हें जिंदगी खूबसूरत बना ली अपनी। तो साध संगत जी वधाई दे पात्र हो कि सरदार पाल सिंह पुरेवाल एडमिंटन निवासी ਜਿਹੜੇ कनेडा की धरती ते जिन्होंने लंबा संघर्ष लंबी मेहनत करके मूल नानकशाही कैलेंडर तैयार किया। हिजरी कैलेंडर भी बनाया उन्होंने। सिखां दी कौम की झोली चीज 2003 में अकाल तख्त वालों प्रवानित ये मूल नानकशाही कैलेंडर जो अजे भी गुरुद्वारे में फोटोआं लगियां, तुहाडे भी थले फोटो लगी है, प्रकाश सिंह बादल की थले फोटो लगी है, CM की फोटो लगी है नाल। यानी कि इसका मतलब इन्हां सारियां दी हाजरी विच इस कैलेंडर नूं प्रवानगी मिली सी। पर की कारण सी कि 2009 विच फिर उन्होंने खत्म करके ते पासे करता गया, क्योंकि डेरेदार संप्रदायी लोगों नूं इहदा मतलब उन्होंने भी 3 तो लैके 9 तक कितना संघर्ष करना पिया होएगा उन्होंने समझाउण वास्ते भी इहनूं पासे करो तो उही पुराना ही लागू करो। तो सरदार पाल सिंह पुरेवाल कुछ दिन पहला सरीरक तौर पर भावें अकाल चलाना कर गए आ, पर उन्होंने कीती हुई मेहनत, उन्होंने कीती हुई तपस्या जिहड़ी उन्होंने दिन रात एक की है, पर जदों उन्होंने कोई पोस्ट पाउंदा है पता थल्ले किदां दे भद्दे कमेंट जिहड़े जिन्होंने कुछ नहीं पता गुरमत बारे, इदां दी शब्दावली उन्होंने बाणी नाल रंगे हुए। कदी उन्होंने कोल बह के वेखिओ, साडे कोल उत्थे लुधियाणे कॉलेज में तुहाडे कोल भी कई वीर मिले होने ने उन्होंने, वो हर गल बाणी की दलील ना करते सी। ते वो महान व्यक्ति जिन्होंने अपना सहज पाठ आप ही रखे होया सी, आप बाणी पढ़ते सी, आप बाणी समझते सी, ते हर नुकते नूं समझते सी कि गुरमत की चीज़ है। तो लगातार कई कई घंटे इस विषय के उत्ते गल विचार चर्चा कर सकते सी। ते उन्होंने जिउंदे जी कहा सी जे किसी नूं कोई भरम भुलेखा तो मेरे नाल बह के डिस्कस कर लो। पर सच्ची गल है वो सरीरक तौर पर भावें चले जाणगे, चले गए ने, पर उन्होंने कीती हुई मेहनत सदा ही जिहड़े पंथ दर्दी आ उन्हां दे हिरदियां में सदा जागदी रहेगी। तो साडा सारियां दा फर्ज बनदा असीं लामबंद होईए, इकट्ठे होईए ते पहरा दईए। जिवें JNK दे विच डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सारे मैंबर साहबान जिन्हें भी तुसीं अज इत्थे पहुंचे हो, आओ लामबंद होईए ते प्रचारक ग्रंथी भी दूजियां स्टेटां में जाके कहण जोगे होण कि भाई एक स्टेट ते है जिथे बहु गिनती गुरुद्वारे मूल नानकशाही कैलेंडर उत्ते पहरा दे रहे हैं। उहदे नाल फिर दीवे नाल दीवा जगदा, दूजियां विच भी ये जागृति पैदा होंदी है, लोगों को समझ आउंदी है कि आओ भाई किसी नूं की समस्या है, मूल नानकशाही कैलेंडर साडा लागू होवे ते बयान RSS दे मुखी दा आवे, सानू ये कैलेंडर प्रवान नहीं। ये तो इदां हो गया कि असीं अपने घर विच कोई नेम बनाया ते गवांढी किदां दखल दे भी कैलेंडर साडे घर दा, असीं अपने घर का कैलेंडर लागू करना। असीं तुहानूं कदी नहीं कहा तुसीं आह दिन इदां ना इदां कर लो। इहदा मतलब किन्ने अधीन हो चुके हैं कि बाणी पढ़ के भी असीं इन्हां गल्लां नूं समझ नहीं सके कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना, हमरा चगरा रहा ना को पंडित मुल्ला। हुण इह पंडित मुल्ला साडे दो दा अर्थ की भी किसी तुसीं मुसलमान हिंदू वीर नाल वरतना नहीं, इहदा मतलब ये नहीं हैगा। अपने समाज में रहना आपां, कोई साडा हिंदू वीर भरा दोस्त मित्र साडे नाल मिलदा है, असीं किसी नाल गलबात करते हैं, कोई इदां दी नफरत विचार नहीं पाउणी, ना ना ना, बड़ा कुछ सीखण नूं मिलदा। अज जोगी फिल्म दिलजीत दी आई है, तुसीं नोट कीता होना भी बहुत कुछ उहदे विच चंगा मैसेज दिता गया, जिहदे विच एक मुसलमान भरा एक हिंदू वीर सिख आपस विच एक दूजे दी हैल्प करदे आ। वो एक उन्हां लोगों के मूँह ते चपेड़ है जिन्होंने ये नफरत पाली गई कि शायद एक फिरके वालों ही इन्हां दा नुकसान किया गया। बहुत वधिया सुनेहा भी दिता गया कि सारे मुसलमान भरा भी माड़े नहीं, सारे हिंदू भी माड़े नहीं, सारे सिख भी माड़े नहीं, बस कुछ लोग अपनियां गद्दियां हासिल कर लई इहो जिहियां चिचड़ियां छेड़ के समाज विच फुट पा के ते अपनी कुर्सी स्थापित करना चाहुंदे ने। उन्हां बहरूपियां दी पहचान करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर कौम दे विच तुहानूं चंगे माड़े बंदे मिल जाणगे, ये वेखना पैना। जे उस वक्त बाहर एक बन्ने
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪਾਰਖੂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵੱਖਰਾ, ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਆਰਾਪਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ USA ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਰ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਧੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਥੋੜਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਭੂਤ ਮੰਨੋ, 5-5 ਮੰਨੋ। ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨਮਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਪੁੱਤ ਜਨੂਰਾ ਧੀ ਜਨੂਰੀ ਜੋਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਪਛਾਤਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ ਚੌਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਜਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜਮ? ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੂ ਘਰ ਪਾਹਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ, ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ, ਉਚਰ ਮਨਾ ਆਗੇ ਜਮ ਦਲ ਬਿਖਮ ਕਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਵਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ 5 ਕਹਿਤਾ, ਥੱਲੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦਲ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਮ ਲਜਾਏ ਕਰ ਭਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬੌੜ ਜਨਮ ਨਾਵਾਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਨੇ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
आओ लकीर दे फकीर ना बणीए भाई, तुहानू गुरु के सिद्धांत उत्ते पहरा देना पैना है, गुरु की विचार नू अपनी जिंदगी विच वसाउणा पैना है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਉਥੋਂ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ, ਉਦੋਂ ਜਹੇਦਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਖੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2003 ਵਾਲਾ ਉਸੇ ਕੈਲੰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਆਓ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਔਖੇ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਲੱਭ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜੀਵਿਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। आओ अपने घर सहज पाठ करिए, गुरबाणी आप पढ़िए, जिन्ना हो सके अर्थां सहित बाणी, बाणी दे नाल अर्थ पढ़ो, सहज पाठ करो, सोहना ਸਾਹਿਤ अपने घर च रखो, लिटरेचर अपने घर च रखो, किताबां पढ़ो ते गुरु की बाणी नूं पढ़दे खंडे की पौ लैके गुरु के पुत धीआं बन के अपना जीवन जीउण दा यतन करिए। इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी, सेवादार, ग्रंथी साहबान, जिन्ने भी तुसीं सेवा करन वाले दूरां नेड़ियां तो चल के आए हो, मालक चढ़दी कला तंदुरुस्ती दे, अरोगता बख्शिश करन। शुकराना मालक दा। उद्यम करो, कराओ ठाकर। महाराज उद्यम असीं करना है, पर प्रेरणा स्रोत साडे तुसीं बनना है। आओ अकाल पुरख दे बख्शे हुए उद्यम सदका अज दे समागम च आपां हाज़री भरी है। विचारां करदिआं भुल्लां मेरियां शब्द गुरु दे जान के हिरदे विच वसाउण दा यतन करना। एक वारी अखीर ते शब्द दीआं रहाओ वालीआं तुकां दा पाठ कर लईए, फिर समाप्ति है। सारे जाने हाज़री लवाओ। तू मेरो सुख दाता प्रभ जी, तू मेरो सुख दाता, तू मेरो सुख दाता प्रभ जी, तू मेरो सुख दाता, बंधन काट करे मन निर्मल, बंधन काट करे मन निर्मल, बंधन काट करे मन निर्मल, बंधन काट करे मन निर्मल। वाह वाह। पूरन पुरख विधाता, पूरन पुरख विधाता, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है। वाह वाह। साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। इक्का बाणी एक गुर, इक्का बाणी एक गुर, एको शब्द विचार, एको शब्द विचार, एको शब्द विचार, एको शब्द विचार। कोटान कोट शुकराना है वाहिगुरु अकाल पुरख जी का
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।